we'll carry from our previous lecture. And in my previous lecture, I told you people categorically that language is the greatest blessing of Almighty. कि ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा हम इंसानों के लिए तोहफा है. And if there is no language, there wouldn't have been no development, no civilization, no prosperity, and like what things. In my previous lecture, when I started with you people, I categorically, you can say, differentiated between the concept of language and a language. And I told you people that language is basically the abstract faculty of a man, which is installed by nature when a person born. Whereas a language is basically associated with our society. It's typically, I must say you people, engage with the social customs, codes, and conventions. Whatever people speak, that falls into the category of a language. So here we are going to define the concept of language. इससे पहले कि हम लोग बात करें कि characteristics of language क्या हैं, there is a need to define the definition of language. Yes, please. Since linguistics is the study of language, it is imperative for a linguist is the to know what language. It basically deals with the phenomena of language. It's imperative for a linguist. So I must say you people, when you start studying language, you must feel proud the day you become linguist. Like what? Someone who studies about sociology is known as sociologist. One who studies psychology known as psychologist. One who studies political science now known as political scientist. And you can say the one who studies botany, botanist, and zoologist, like what? And when you start studying the phenomena of language, you are, you can say, rightly to be opined as linguist. So now onward, you must pronounce yourself as linguist. Right, reader, please. language is a very complex human phenomena. It's not a simple thing, rather it's very complex human phenomena. All attempts to define it have proved inadequate. कि आज तक दुनिया के अंदर जितनी भी अटेम्प्ट्स हुई हैं इसको डिफाइन करने के हवाले से, all those attempts proved almost failed attempts. हम मतलब आज तक इसकी एक ऐसी डेफिनेशन नहीं कर सके, आज तक हम इसको इस तरह से डिफाइन नहीं कर सके कि जिसके ऊपर तमाम लोगों का कंसेंसस मौजूद हो कि ये जो है वो लैंग्वेज है. जी. In a nutshell, language is an organized noise
Nice. Used in That's very important. You can say phrase. Organized nice. Yesterday, when I was telling you people, and I gave you an example of the Urdu word alfaz, and I said you cannot speak. You can say zalfa, ja, falza. इस तरह से आप इसको नहीं कर सकते. आपको जब भी एक मतलब किसी को मीनिंगफुल साउंड देनी होगी तो आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में बोलना होगा. मतलब ये एक बात बड़ी मतलब वाजिया है कि आप सपोज लफ्ज आपके सामने यहाँ पर ये सिंबल नजर आ रहा है, तो अब आप अगर इस लफ्ज सिंबल्स को आप बोल सम कर दें तो ये लफ्ज मतलब जो है वो कभी भी, ये एक बात आपने याद रखनी है कि ये कभी भी कंप्रीहेंसिबल नहीं होगा. आप इसको कंप्रीहेंड नहीं कर पाओगे. सो देयर इज अ नीड टू utter an organized sound. मतलब आप कोई भी ऐसी साउंड मुंह से निकाल ले जो आपके मतलब उस ए लैंग्वेज के सिस्टम एंड कन्वेंशंस में फॉल नहीं करती, तो वो ऑर्गेनाइज्ड साउंड नहीं कहलाएगी. जी. used in actual social situations. मसलन सपोज That is why used in actual social situations. मसलन सपोज आप मतलब जो है वो खड़े हैं किसी मार्केट के अंदर और जो है वो वहां पर आप किसी का मतलब आप किसी को जो है वो रोकना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए लफ्ज मतलब जो है वो चेक पॉइंट यूज करते हैं. ठीक है, कि रोकने का मुकाम. ठीक है, लेकिन अगर इस यही जो किसी और जगह पर ये जो टर्म है वो बिल्कुल किसी और सेंस में जो है वो इस्तेमाल होती है. यानी ये एक बात याद रखिएगा कि जब आप अपने आप को जब आप किसी खास सोशल सिचुएशन के अंदर अकर कर रहे हैं, वहां पर जब आप बात कर रहे हैं, सपोज लफ्ज किचन जो है ये आपका यूज होता है टिपिकली आपके है वो घर के अंदर, लेकिन लफ्ज किचन कैबिनेट जो है वो इंटायरली पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है. कि किचन कैबिनेट से मुराद ये वो लोग, यहाँ किचन कैबिनेट हरगिज़ वो कैबिनेट नहीं है जो किचन के अंदर इस्तेमाल होती है, बल्कि किचन कैबिनेट से मुराद ये होगी कि वो लोग जो प्राइम मिनिस्टर के करीब तरीन होते हैं, वो उसकी कबीना के वो लोग जो उसके करीब तरीन होते हैं, उनको हम किचन कैबिनेट कहते हैं. तो इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज नॉइस जो है वो अगर करना होती है. मसलन मैं इस वक्त जितना आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, it is comprehensible for you people. You can even understand it what I'm saying you people. So and what I'm teaching you people, it's really you can say according to the social situations. If in this lecture, if I'm going to start teaching you chemistry, then it is not according to the actual social situations, because all of you are the students of linguistics. That's why I'm teaching you language, and I'm teaching you about the concept of language. So we must try to understand one thing, that language is entirely an organized nice. Gee. that is why it has also been defined as contextualized systematic sound. According to the context, के आपको कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक बोलना पड़ेगा. कि जिस तरह का कॉन्टेक्स्ट होगा, जिस तरह का सामने शख्स बैठा होगा, जिस तरह की सिचुएशन सामने अकर हो रही होगी, वो आपको बोलना पड़ेगा. लाइक व्हाट, इफ यू आर इन द क्लास ऑफ ए लिटरेचर, देन the term plot is comprehensible, but when you are in a court and you utter a word plot, then it will give an entirely different meaning. अब एक प्लॉट से मुराद साजिश है जो कि कोर्ट के अंदर बोला जा रहा है, और दूसरे प्लॉट से मुराद जो हम लोग अपनी क्लास में बोल रहे होंगे, जो लिटरेचर की क्लास है, वहां पर प्लॉट से मुराद क्या होगा कि इससे ये बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर है जो बेसिकली हमारी उस स्टोरी को मतलब जो है वो नरेट कर रहा है. जी. According to an ancient linguist of India, Patanjali, language is that human expression language which is uttered out by speech organs. Which is uttered out by speech organs.
तो ये वो कहा जाता है कि इट्स एन ह्यूमन एक्सप्रेशन. व्हाट are you feeling, what is going inside you, that would be called as a human expression which is uttered out by organs, speech organs. So in the Encyclopedia Britannica volume 13, language is defined as a system of conventional spoken or written symbols by means of which human beings as members of social group and participants in its culture communicate. तो एक चीज जो पहली डेफिनेशन जो आपके सामने आई है, ये डेफिनेशन जो है वो टिपिकली जो है वो नरेट करती है कि अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल से मुराद कि ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री के साथ ये कन्वेंशंस बोले जाते हैं, ये कहे जाते हैं, ये लिखे जाते हैं. मसलन सपोज we are not the only people who are speaking Urdu, we are speaking in English language. This is actually convention, और ये कन्वेंशन जो है फॉर द लॉन्ग टाइम ये चल रही है. फॉर द लॉन्ग टाइम ये सारे का सारा जो सिलसिला है, हमसे पहले लोग भी इसी तरह से कम्युनिकेट कर रहे थे. और when we are talking in English, we are not the only people who are speaking in an English language. इंडिया के अंदर you find as well people are speaking English when they are intermingling Hindi, Urdu and Punjabi and like what Marathi and Bengali, वो English कर रहे होते हैं. Like what here, likewise here in Pakistan we do find as well. Here we also do English, like we mix. You can say Punjabi, English, and Urdu, and like any other language, Balochi. It can be. You can say Sindhi as well. सो ये जो है वो हमें एक बात अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी कि ये कन्वेंशंस हैं, और ये कन्वेंशन फॉर द लॉन्ग टाइम हमसे पहले वाले लोग, हमारे जो प्रीडिसेसर्स हैं वो कर रहे हैं. और ये बात याद रखिएगा कि हमारे जो सक्सेसर्स होंगे, हमारे से बाद में आने वाली जो नस्ल होगी, they would also be speaking like this way. Spoken are written symbols by means of which human being as members of social group. So man is a social animal. So we are called as a social group. So and participants in its culture. So ये जो लैंग्वेज है ये बुनियादी तौर पर हमारा कल्चर बनाती है. ये जो लैंग्वेज है ये बुनियादी तौर पर जो है वो एक सोशल ग्रुप ऑर्गेनाइज करती है. If there wouldn't have been this language, there might not have been any social group, there might not have been any culture, and the credit goes to ultimately this language, this phenomena, this tool, और ये जो हम communicate कर पाते हैं, and it can be in both forms, either it can be in written as well as in spoken form. तो ये दोनों शक्लों के अंदर जो है वो हमें जो है वो शेयर हो रहा होता है. अब अगर बिल फर्स्ट हम लोग फर्दर इसको मतलब जो है वो डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो अल्टीमेटली सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है, या जिस डेफिनेशन का मैं आपके साथ तस्करा कर रहा हूँ, नो डाउट हमने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की जो डेफिनेशन आपने देखी. अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन जिसके साथ मैं बात करूंगा, and that is you can say very comprehensive, very detailed you can say definition, और perhaps जो है वो तकरीबन तमाम aspects of language को ये almost जो है वो अपने अंदर जो है वो समो लेती है. जी. Language is a purely human and non-instinctive method of communicating ideas, emotions. जो डेफिनेशन है ये एडवर्ड सेपर की डेफिनेशन, एडवर्ड सेपर. ये आपके पास आपकी बुक पर भी जो है वो सर्टेनली मौजूद होगी. सो इस डेफिनेशन को हम लोग जो है वो माइट पॉसिबल कि आपकी बुक पर ये कंप्लीट ना हो, but I'm sharing you the two aspects of language. I'm going to tell you not only about human language but also about communication, animal communication. So language is purely human. एडवर्ड शेपर के ख्याल में लैंग्वेज जो है वो प्योरली ह्यूमन है. ये सिर्फ इंसानों तक, कल भी मैं इसकी बात कर रहा था
कि ये ह्यूमन स्पीशीज है, इसके अलावा ये किसी और तक मतलब जो है वो इसका कोई अमल दखल नहीं। दुनिया के अंदर जितनी और स्पीशीज आ जाएं, दुनिया के अंदर जितनी और मतलब जो है वो आप मतलब क्रिएचर्स की बात कर लें, सिर्फ अगर लैंग्वेज मौजूद है तो वो ह्यूमन स्पीशीज के पास है। जिस तरह से कल भी मेरी आपके साथ बात हुई थी कि स्पीशीज स्पेसिफिक है, कि ये उनके अंदर यूनिफॉर्म है, और ये मतलब जो है वो ऑलमोस्ट सारे के सारे मतलब जो इंसान है वो उनके अंदर ये एक कॉमन फिनोमिना है। तो असल क्रेडिट जो जाता है वो आपकी उस इनहेरेंट कैपेसिटी को जाता है जो कुदरत की तरफ से आपके अंदर जेनेटिकली फिट की जाती है, और आप जो है वो आगे मतलब जो है वो नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चलता है। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपके अंदर वो जेनेटिकल फैसिलिटी फिट ना की हो, जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं, तो आप कभी भी ए लैंग्वेज यानी कि जो आपकी स्पोकन फॉर्म है, जो आपकी रिटन फॉर्म है, वो आप कभी भी नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो लैंग्वेज इज प्योरली ह्यूमन and a non-instinctive method. Why do we call non-instinctive? Why don't we call it's an instinctive? Instinctive, that's whatever you can say, you can say built in within you inherently. कि आपके अंदर जो कुछ built in मौजूद होता है वो आपका instinctive है, वो आपकी जिबिल्लत में शामिल होता है। Like what? कि आप किसी जानवर की आप बात कर ले तो उसका जो चलाना होगा वो उसका इंस्टिंक्टिव होगा, वो उसकी जिबिल्लत के अंदर मौजूद है। वो उसका चारा खाना वो उसकी जिबिल्लत में मौजूद है। इसी तरह से हम इंसानों का नेचर्स कॉल तो या लाइक व्हाट ये जो जिसको आप नेचर्स नीड्स कहते हैं, या इसी तर्ज के साथ आपका एक खास तर्ज अमल अपना लेना के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज इज नॉट इंस्टिंक्टिव, rather it is a non-instinctive method of communicating ideas. तो ये non-instinctive है, non-instinctive कि we do not you can say adjust it within ourselves। हेलो हम लोग अपने अंदर जो मम्मा, है लेक्चर हो रहा है, अभी ना करें कॉल। जेनेटिकली इसको लेके पैदा नहीं होते, बल्कि क्या होता मैं है बाद में बात करती हूँ। ये हमारी जो है वो किसमें मौजूद होता है बेसिकली, हम इसको एक्वायर करते हैं। नॉन इंस्टिंक्टिव व्हेन वी एक्वायर विद आवर एफर्ट्स, विद आवर यू कैन से सेंसेस। सो ये इंस्टिंक्टिव नहीं, लैंग्वेज इज अ नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज। मसलन सपोज अगर आप जो है वो आपका हाथ जो है वो किसी गर्म चीज को लग जाए, लेट्स सपोज कि आपका हाथ किसी, तो फौरी तौर पर आपका हाथ पीछे आ जाता है। अगर आप कुछ कड़वी चीज खा लें तो फौरी तौर पर वो आप उसको बाहर की तरफ उगल देते हो, आप बाहर फेंक देते हो। तो ये आपकी इंस्टिंक्टिव अप्रोच है। लेकिन नॉन इंस्टिंक्टिव से मुराद क्या है कि जब आप किसी चीज को जो आपके अंदर मतलब जो है जिसको आप एफर्ट करके मतलब सोसाइटी से लेते हैं, नो डाउट सिस्टम आपके पास मौजूद है, लेकिन आप बाय बर्थ लैंग्वेज आई मीन टू से जो कन्वेंशंस हैं, जो कोड है, वो आप लेकर पैदा नहीं होते। और कल भी मैं ये मिसाल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और कैटेगोरिकली मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर पाकिस्तानी बच्चा जो है वो किसी अफगान माँ बाप के हवाले कर दिया जाए या किसी ब्रिटिश माँ बाप के या जर्मन माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, तो लेट मी टेल यू कि वो वही जुबान बोल रहा होगा जो वो अडॉप्टिव जो जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया होगा, जो वो जुबान बोल रहे होंगे। तो देयर वुड बी नो डिफरेंस एट ऑल कि वहां पर, क्योंकि उस बच्चे के अंदर जेनेटिकली वो जो डिवाइस है, लैंग्वेज डिवाइस है, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना जो है वो तो फिट है, लेकिन जो ए लैंग्वेज है वो अपनी सोसाइटी से एक्वायर करेगा। तो मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज, इमोशंस एंड डिजायर्स by a means of a system of voluntarily produced symbols. That's very important. Voluntarily कि आप जो कुछ बोलते हैं, all those I mean to say your produced symbols, और वो symbols आपके जो organs of speech हैं वो बोलते हैं, तो वो तमाम की तमाम जो symbols हैं वो voluntarily produced symbols कहलाते हैं। क्यों? तो मसलन सपोज कोई आपके सामने मतलब बातें करता है तो आप वॉलंटियरली आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो। यानी आप ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो एक बंदा जो है वो आपके सामने कम्युनिकेशन
जो है cannot take place. I mean to say कि जो दो लोगों के दरमियान जो communication है, it cannot take place until or unless when the other side is not speaking. So ये ऐसा मुमकिन नहीं है, या वो उसको मतलब somehow ऐसा भी आप ये यहाँ पे बात कर सकते हैं कि सर जरूरी तो नहीं होता ना कि मगर एक बंदा जो है वो हमसे बात कर रहा है तो हम उसका जवाब दे रहे हैं. सपोज हमारे लिए कोई मैसेज आता है और वो मैसेज कन्वे करके चला जाता है, एंड वी डू नॉट यू कैन से इवन कि हम कोई इवन एक्सप्रेशन भी नहीं देते, बट लेट मी टेल यू कि जो है वो आप उस मैसेज को ग्रास्प कर चुके होते हो, मतलब आप अपने अंदर जो है वो उसको उतार दूर चुके होते हो. आपका जो सिस्टम है, ऑडिटरी सिस्टम जो है, जहां से आप मैसेज रिसीव करके अपने माइंड में और वहां से उसकी जो है वो डिकोडिंग होती है, आप उस मैसेज को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं. सो ये एक बात है कि आप असल में अपने आइडियाज, इमोशंस और डिजायर्स ये वॉलंटियरली प्रोड्यूस सिंबल्स के अगर सोसाइटी ये वॉलंटियरली मतलब ये वो सिंबल प्रोड्यूस ना करे, ये एक बात याद रखिएगा कि लैंग्वेज का फिनोमेना या कम्युनिकेशन जो मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता. हम लोग वॉलंटियरली इन सिंबल्स को प्रोड्यूस करते हैं. तो these symbols are in the first instance auditory. तो ये सबसे पहले कहां पर फॉल करती हैं? They fall on our ears. यानी कि सबसे पहले हमारे कानों पर, मतलब मैं जो भी इस वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, इट्स फॉलिंग ऑन योर ईयर्स, ये आपके कानों पर फॉल कर रही है. और your ears are recipient of the message. ये जो मेरी तरफ से जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये आपके कान जो हैं वो इसको रिसीव कर रहे हैं. And this message from ear to brain, it is, you can say, these ear becomes become the source of a device which take this message, this communication to your brain, and your brain basically decodes this message. ये बिल्कुल इसी तरह से है कि इंशाल्लाह जब आगे हम लिंग्विस्टिक्स में आगे फर्दर हम जब एक्सप्लोर करेंगे चीजें फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में, तो तब मैं इंशाल्लाह वहां पे डिटेल इस कॉन्सेप्ट की बात करूंगा. लेकिन मैं आज आपको आसान लफ्जों में ये समझा सकता हूँ कि आपका सेल फोन जो है वो इसकी बेहतरीन मिसाल है. तो मसलन सपोज आप जो ही एक नंबर डायल करते हैं और नंबर डायल करने के बाद जब एक शख्स आपको हेलो बोलता है, तो क्या होता है, उसका हेलो बोलना सबसे पहले वो हेलो जो है वो वॉइस सिग्नल्स के अंदर मतलब कन्वर्ट होता है, और वॉइस सिग्नल्स जो हैं वो चले जाते हैं आप उसके करीब कंट्रोल टावर पर. वो कंट्रोल टावर जो है वो उस आवाज को मतलब उन्हीं वॉइस सिग्नल्स को आपके करीब वाले कंट्रोल टावर पर लेकर आता है, और वो कंट्रोल टावर आपके सेल फोन के अंदर उन वॉइस सिग्नल्स को भेजता है, और आपका सेल फोन उनको उन्हीं वॉइस सिग्नल्स को, क्योंकि वो सारे के सारे जो वॉइस सिग्नल्स हैं वो इनकोड हो चुके होते हैं. जिस वक्त मेरे मुंह से कोई मतलब जो वो लफ्ज निकल रहा है तो ये इनकोड हो चुका होता है, और ये वेव सिग्नल की शक्ल में जो है वो कन्वर्ट हो चुका होता है. लेकिन जो ही किसी शख्स के ये कान पे पड़ता है या तो वो फिर से दोबारा डीकोड होता है. तो मैं दोबारा उसी एग्जांपल की तरफ आता हूँ कि जो ही वो आपके टावर और आपके सेल फोन पर आता है और वहां पर आपके वो जो वॉइस सिग्नल्स हैं वो दोबारा से डीकोड होते हैं, और आपको जो आवाज आपके रिसीवर में मसूल होती है वो फिर से क्या मसूल होती है? हेलो. तो जो उस शख्स ने बोला होता है एग्जैक्टली within no seconds, मतलब smaller amount of seconds, electronic you can say जो devices हैं उनके जरिए जो आवाज है वो सेकंड्स के छोटे से हिस्से में डीकोड भी इनकोड भी होती है और डीकोड भी होती है. तो दैट्स लिटरली अ वेरी you can say unique system, and exactly same happens when we communicate. ये हमारे मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज हैं ये सबसे पहले क्या होते हैं, ये मतलब जो है वो एनकोड हो जाते हैं. तो एनकोडेड उन साउंड सिग्नल्स को, साउंड वेव्स को जो ईयर जो है वो रिसीव करते हैं और उनको ब्रेन तक लेके जाते हैं, और ब्रेन तक मतलब जो है वो ब्रेन उनको डिकोड करता है. आप आसानी से मिसाल आप मतलब दे सकते हैं कि अगर आप आप किसी बस के सामने खड़े हैं और एक हॉर्न आपके सामने बज जाए तो नो डाउट एक नॉइस पैदा होती है, लेकिन
वो भी नॉइस जो है वो आपको इस बात का सिग्नल होता है कि आप बस के सामने से हट जाएं। सो आपका माइंड जो है वो उसको भी रिसीव कर रहा होता है। तो these symbols are in the first instance auditory and they are produced by so called organs of speech। कि ये जो आपके जो सिग्नल्स हैं ये दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। कि जो आपके सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं ये इनको प्रोड्यूस करते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। या आप मतलब सो कॉल्ड मैंने क्यों बोला, ये सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच जो है वो एडवर्ड सैफर इसको क्यों कहता है, बिकॉज your organs of speech your organs of speech do not only you can say are involved in communication method। कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन मेथड में सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है। रादर आई मस्ट से यू पीपल दैट कि जो कम्युनिकेशन है इन ऑर्गन्स ऑफ स्पीच के साथ दिस इज द सेकेंडरी थिंग। फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस इनका फंक्शन जो है वो कुछ और है। मतलब सपोज आपका नोज, आपका ईयर और इसी तरह के साथ आपका लाइक व्हाट जो है वो आपके लंग्स जो हैं और फिर इसी तरह से आपका जो थॉट है, जो आपका विंड पाइप है, इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो बोलना नहीं है, बल्कि इनका मकसद जो है वो इंसानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंसान की जो 5 सेंसेस हैं कि इनको जिंदा रखना है, इंसान को जिंदा रखने के लिए काम आता है। तो इस वजह से मतलब जो टर्म सो कॉल्ड इस्तेमाल हुई है, जो फ्रेज सो कॉल्ड इस्तेमाल हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी सेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि ये सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच हैं, बिकॉज कि हम सिर्फ इनसे एक काम नहीं लेते, बल्कि ये मतलब जो है वो मल्टीपल जो इनके एंगल्स हैं वो इनके लिए मतलब जो है वो काम इनसे लिया जाता है। सो उसके बाद आगे जी रीडर, These symbols are in the instance auditory and they are produced by the so-called organs of speech in animal communication. if communication, पहले तो वो एनिमल कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन ही नहीं मानता, वो कहता है इफ, अगर हम इसको मान लें कि ये कम्युनिकेशन, सो इट मे बी कॉल्ड कि इफ कम्युनिकेशन, अगर इसको कहा जाए कि कम्युनिकेशन as is brought about by involuntarily symbols, involuntarily instinctive cries, not symbols। ये क्या है, हम हमारे लिए, हम इंसान क्या थे, वॉलंटरली, जबकि यहां पर क्या आ रहा है, इनवॉलंटरली। अब यहां पर जरा थोड़ी सी चीजें मैं कुछ हाईलाइट करने लगा हूं आपके सामने, ये जरा अल्फाज आपने फोकस रखना। ये जो आपके सामने मैंने मतलब जो है वो आपको हाईलाइट करके मटेरियल दिया है, ये आपको सारी चीजें जो है वो एक डिफरेंस जो है वो समझा जाएगा। We the human beings are basically non-instinctive। हमारी जो टेक्निक है, हमारा जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है, इट्स इंटायरली नॉन इंस्टिंक्टिव, ये इंस्टिंक्टिव नहीं है। वेयर एज यहां पर जो बात हो रही है वो इंस्टिंक्टिव है, ठीक है, यहां पर जो बात हो रही है वो इंस्टिंक्टिव है, यानी कि उनकी जिबिलत के अंदर है। हमारी जो बात थी, जो हम इंसान है, वो सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। यहां पर इस चीज की बात हो रही है कि इट इज अ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। यहां पर क्या बात हो रही है, इनवॉलंटरली कराई से, कि ये इनवॉलंटरली, मतलब आपने कई जानवरों को देखा होगा कि वो जस्ट मतलब जो है वो ऐसे ही मतलब जो है वो शोर डाल रहे होते हैं, शेर ऐसे ही घुरा रहा होता है, गधा ऐसे ही डीजू डीजू कर रहा होता है। फिर ये जो तमाम चीजें हैं, ये बुनियादी तौर पर इस बात को मतलब जो है वो बिल्कुल क्लियर कर जाती हैं कि किस तरह से एक तरफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स हैं और दूसरी तरफ किस तरह से इनवॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स जो हैं वो मौजूद है। इस तरह से दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ इंस्टिंक्टिव क्राइज है कि अगर आप किसी गधे को, किसी जानवर को सोटा मारते हो, तो आप डंडा मारते हो, तो आपको ये बात बहरहाल ये नजर आ जाती है कि उसकी जो सिंबल आएगी वो इंस्टिंक्टिव होगी।
वो मतलब जो है वो उसकी इंस्टिंक्ट के अंदर जो है वो मौजूद है, और वो वॉलंटरली प्रोड्यूस नहीं कर रहा बल्कि वो इनवॉलंटरली प्रोड्यूस कर रहा है। और कई जानवर जो हैं वो बगैर मतलब उनके इर्द गिर्द कोई और दूसरा जानवर भी ना हो तो वो फिर भी शोर मचा रहे होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो इंस्टिंक्टिव जो है वो क्राइज हैं, इनवॉलंटरली क्राइज हैं। इनवॉलंटर क्राइज, इनवॉलंटर जो है वो मतलब उनका एक शोर है, नॉइस है, जो कि कॉम्प्रिहेंडेबल नहीं होता। जबकि हम इंसान ऑर्गेनाइज्ड वे से, जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ बात कर रहा था, कि ये जो जितनी भी हमारी मतलब जो हम बोल रहे होते हैं, ऑल दोस आर बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड, और ये प्योरली ऑर्गेनाइज्ड वे के साथ हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, और इज नॉट इन आवर सेंसेस लैंग्वेज लैंग्वेज एट ऑल। तो एडवर्ड सेपर ये बात करता है कि जो एनिमल कम्युनिकेशन है, हम उनको किसी भी शक्ल में मतलब जो है वो लैंग्वेज नहीं कहला सकते, क्योंकि उनमें ये डिफरेंसेस हैं जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर भी कर दिए, कि वो जो है वो इंस्टिंक्टिव हैं और इनवॉलंटरली हैं। जबकि हम इंसान क्या हैं, नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं और वॉलंटरली प्रोड्यूस कर। अगर हमारी मर्जी ना हो तो कम्युनिकेशन कभी पूरी नहीं हो सकती। मसलन सपोज अगर आप किसी शख्स के सामने बैठ के बातें करें तो एक वक्त आएगा वो तंग होगी, आपको कहेगा कि तुम्हारे पास कोई अल्फाज नहीं है, तुम्हारे पास कोई जुमला नहीं है, तुम आगे से कोई बात नहीं कहना चाह रहे। सो ये हमें नजर आता है कि हम वॉलंटियरली अपनी मर्जी से बोल रहे होते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं they do not produce their symbol voluntarily, rather they are involuntary. You can say instinctive cries जो है वो मतलब जो वो अटर कर रहे होते हैं, और उन instinctive cries को हम कतई तौर पर लैंग्वेज नहीं कह सकते। We cannot say कि वो जो है वो हमारे लिए एक लैंग्वेज का दर्जा भी रखती है। सो अगर आप नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशंस की तरफ मतलब जो है वो जाते हैं, तो यू वुड नाउ कि देयर आर सो मेनी डेफिनेशंस एज वेल, लेकिन इसमें जो सबसे पहले जो डेफिनेशन सेपर की थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, कि सेपर जो है वो किस तरह से मतलब जो है वो बात करता है। सो यहाँ पर आप देख भी पा रहे हो कि यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं थी, मैंने इसके साथ एनिमल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर भी करी। इसी तरह मतलब जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर आप बात करें तो इसमें जो सेकंड डेफिनेशन है वो एएच गार्डनर की डेफिनेशन है, जो उसने अपनी बुक स्पीच एंड लैंग्वेज 1985 में लिखा है कि लैंग्वेज इन इट्स वाइडेस्ट सेंस means the sum total of such signs of our thoughts. तो ये it is in a wider sense means the sum total, ये total वो signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will, कि जो हमारी मर्जी के साथ, ये exactly बिल्कुल वही है कि जो हम अपनी मर्जी के साथ जो उनको रिपीट भी कर सकते हैं और प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आर केपेबल ऑफ एक्सटर्नल परसेप्शन, यानी कि जो एक्सटर्नल जो परसेप्शन है, जो हम फील करते हैं बाहर से, हम जो उन चीजों को अपने पास जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, दैट कैन बी इक्वली सेड कि हाँ भाई ये लैंग्वेज है। सो लैंग्वेज जो है वो हेनरी स्विफ्ट के ख्याल में may be defined as the expression of thought, कि whatever that is going within your mind, that is called language by means of speech sound। तो आप स्पीच साउंड के जरिए मतलब इन चीजों को मतलब जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तर्ज के साथ a system of communication by sound through the organs of speech and hearing among human beings of a certain group or community, जो इंसानों के दरमियान या कम्युनिटी के दरमियान जो यूजिंग वोकल सिंबल्स, जो वो वोकल सिंबल्स या इन रिटन फॉर्म में possessing arbitrary conventional meanings, कि मतलब उनके जो आर्बिट्रेरी कन्वेंशनल, पोजिंग आर्बिट्रेरी कन्वेंशनल मीनिंग्स है। मसलन सपोज आप ये अंदाजा कर लें कि पैरेट और नीडल, नीडल के कंपैरेटिवली स्पेलिंग ज्यादा है, और सॉरी जो कैट है उसके मैं एक आपको बात बता देता हूँ, उसके स्पेलिंग जो है वो कंपैरेटिवली कम है। अब असूली तौर पर अगर जिसामत के एतबार से देखा जाए तो कैट हमें मतलब नीडल से कंपैरेटिवली बहुत बड़ी मतलब जो है वो नजर आती है, लेकिन आप अंदाजा कर ले कि स्पेल के एतबार से नीडल जो छोटी चीज है उसके स्पेलिंग बहुत बड़े, तो ये आर्बिट्रेरीनेस है।
हमें ये मानना होगा कि हमारे जो कन्वेंशनल जो सिंबल्स यूज होते हैं इनके मतलब कितने लेटर्स उसमें यूज हो रहे हैं या वो कैसे लफ्ज लिखा जा रहा है उसका ताल्लुक कतई तौर पर उसकी जसामत के साथ नहीं है। लाइक आप अंदाजा कर लें जग और ग्लास, ये दोनों को आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। तो जग कंपैरेटिवली बड़ा है और ग्लास कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। अगर मतलब कितने ग्लास ऑफ वाटर जो है वो एक जग में आ सकता है। तो अगर आर्गुमेंट के रैशनल वे से देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो शायद ये बात दुरुस्त होगी कि जिसके स्पेलिंग ज्यादा हैं वो मतलब जो है वो जो है वो जग है और जिसके स्पेलिंग कम है वो ग्लास है, वो चूंकि छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देख रहे हो कि जग के स्पेलिंग थोड़े हैं लेकिन इसके बाद बावजूद वो एक बड़े हुजम को जाहिर कर रहा है। आर्बिट्रेरीनेस इसी चीज को बोला जाता है। और अगर दूसरी साइड पर आप आ जाए, ग्लास स्पेल ज्यादा होने के बावजूद जो है वो एक छोटे फिनोमिने को हमारे साथ जो है वो जाहिर कर रहा है। यहाँ जो अभी तक जो मैंने आप लोगों के सामने डेफिनेशंस की या जो मैं डेफिनेशंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा था, उन सब का जो अल्टीमेटली जो पर्पस था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम एटलीस्ट डिफाइन कर सकें कि लैंग्वेज क्या है, फिनोमिना ऑफ लैंग्वेज क्या है, या लैंग्वेज को हम जो है वो किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज को किस तरह से अंडरस्टैंड किया जा सकता है। ये कुछ डेफिनेशंस हैं। नो डाउट इसमें मजीद डेफिनेशंस को भी हम लोग जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारा मतलब जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म लैंग्वेज, कि हम लैंग्वेज को किस तरह से मतलब जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और लैंग्वेज